Assalamu alaikum. I am Miss Saida. I will teach you mathematics for class 6. This is your new countdown mathematics book. I will start exercise number 2A. I will start from page number 22. Exercise number 2A. Number 1. Filling the blanks to make the statement true. Number 1. The smallest natural number is dash 1. Natural number will start from 1. The smallest whole number is dash 0 because whole number start from 0. The smallest even number of 3-digit even number is dash 100. The greatest odd number of 2-digit is dash 99. The greatest 4-digit number is dash 9999. It means 4 times 9. The smallest 3-digit odd number is dash 101, meaning 101. Question number 2. Answer the following questions. Number 1. Is every natural number is whole number? मीनिंग क्या नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है? एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस. नंबर 2. इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? इफ नॉट देन नेम इट. क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? अगर नहीं तो उनका नाम बताइए. आंसर इज नो एंड 0. नंबर 3. विच होल नंबर सक्सीड 9999. सक्सीड मीन्स होता है आप इसमें 1 प्लस कर दें. जब आप 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000. नंबर 4. Which whole number precede 1000? Precede मीन्स आप इसमें से 1 माइनस करेंगे, ये आपके पास आएगा 999. Student, I think so all of you have done exercise number 2B, question number 1, 2 and 3. I will start from question number 4. State whether the following are true or false. अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फॉल्स है. इसके ट्रू एंड फॉल्स आपको फाइंड आउट करने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा. नंबर 1. 8 माइनस ब्रैकेट 4 minus 2 equal to 8 minus 4 minus 2. Look at here student. इसे जब हम सॉल्व करेंगे 8 4 में से आपने 2 माइनस किया, ये आ गया आपके पास 2 इक्वल टू 8 में से आपने 4 माइनस किया 4 और ब्रैकेट आपने ओपन कर ली -2. 8 में से आपने 2 माइनस किया, 8 minus 2 equal to 6 and equal to 4 minus 2 we will get 2. 6 equal to 2. So this statement is false. Next number 2. 10 minus 6 minus 4 equal to 10 minus 6 minus 4. We will solve it. 10 minus 2, 6 minus 4, we will get 2.
10 minus 2 equal to 10 minus 6, we will get 4 minus 4. 4 minus 4 equal to 0 and 10 minus 2 equal to 8. So 8 equal to 0. So this is statement is not equal. So it is false. Number 3. 10 minus 6 minus 4 equal to 10 minus 6 plus 4. We will get 10 minus 2 equal to 4 plus 4. 10 minus 2 we will get 8 and equal to 4 plus 4 equal to 8. So 8 equal to 8. So this statement is true. Number 4. Number 4. 15 minus 2 equal to 15 minus 12 equal to 12 minus 15. 15 minus 12 we will get 3 and 12 minus 15 we will get minus 3. So 3 equal to minus 3. This statement is not equal. So this statement is false. जब आप इस क्वेश्चन में जब आप 8 में से माइनस कर देते हैं, अब जब हमने इसको सॉल्व किया और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट था, इसका आंसर आया 6 इक्वल टू 2, तो ये जब इक्वल आएंगे एक दूसरे के तो ये ट्रू होगा, जब इक्वल नहीं आएंगे तो ये फॉल्स होगा. तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज फॉल्स बिकॉज 8 इक्वल टू 0, थर्ड इज 8 equal to 8, so this is statement is true, and last one is 3 equal to minus 3, so this statement is false. Next question number 5, filling the blanks. Number 1, dash plus 0 equal to 0 plus 18. Student, look at this filling the blanks. 18 answer, because when we will add 0 any number, we will add 0, we will get that number. जब आप किसी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो आपके पास वही नंबर आ जाता है. इक्वल के बाद हमारे पास 0 प्लस 18 है, इट मीन्स 18, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड पे डैश प्लस 0 है, इट मीन्स आपको इसमें 18 प्लस कर देंगे तो 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा. नंबर 2, 6 into 9 equal to 9 into dash. Answer is 6, because 9 and 6, यहाँ पे भी 6 into 9 है और 9 into 6. आप 6 into 9 लिखें, 9 into 6 लिखें, सेम आंसर आएगा. नंबर 3, 5 into 7 plus 2 equal to 5 into dash plus dash into 2. अब यहाँ पे देखें, अगर आप 5 में 2 प्लस 7 में आप 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9. 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45. अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप फिलिंग द ब्लैंक में 7 लिखें, 5 7 से 35 प्लस 5 इंटू 2 10, 10 to 35 45, 45 इक्वल टू 45. सो मिसिंग नंबर इज 7 and 5. नंबर 4, dash into 3 plus 4 equal to dash into 3 plus ब्रैकेट में 5 into 4. यहाँ पे देखिए आपके पास 2 डैश हैं, यहाँ पे फर्स्ट डैश में आपके पास आ जाएगा 5 और 3 में 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7. 7 into 5 35. अब यहाँ पे देखें, ये वाला मिसिंग वर्ड है 5. 5 3 is 15 प्लस 5 4 20. 20 में आप 15 प्लस करेंगे जाएगा 35. सो 35 इक्वल टू 35. सो 5 इज अ मिसिंग नंबर. नंबर 6, नंबर 5, 6 इंटू डैश इक्वल टू 6. 6 इंटू डैश, अब 6 के बाद आपके पास डैश है तो इसमें आ जाएगा 1, बिकॉज 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6. नंबर 6, 5 प्लस डैश इक्वल टू 5. जब आप किसी नंबर में भी 0 प्लस करते हैं तो आपका वही नंबर आ जाता है, तो डैश में आ जाएगा 0. नंबर 7, 12 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 12.
अब आप कौन सा नंबर ऐसा है जिसको आप डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 1। 12 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे आगे 12 इक्वल टू 12। नंबर 8 डैश डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें वो नंबर लिखना है जिसको आप डिवाइड करें तो 0 आए। जब आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। डैश डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0, मिसिंग नंबर इज 0। Start from page number 30, multiple choice 2. Select the correct answer from the given option. Number 1. The set of natural number with 0 added to it becomes set of whole number. The set of natural number with 0 added, यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, अब आप उसमें 0 ऐड कर दें, बिकम सेट ऑफ होल नंबर, तो वो होल नंबर का सेट बन जाएगा। अब दिस स्टेटमेंट, इसमें ऑप्शन दी है नॉट ऑलवेज ट्रू, फॉल्स, ट्रू, नन ऑफ द अबव। आंसर इज करेक्ट, आंसर इज ट्रू। जब आप इसमें 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज B, true. Number 2, position of 4 in the number 3, 24, 9, 0, 1 is. इसमें आपको पोजीशन बतानी है 4 की। जैसे 1 आपका यूनिट प्लेस पे है तो ये हो गया 1, 10 आपका 0 हो गया, 100 पे आपकी 9 हो गया, और 4 आपका 1000 प्लेस पे हो गया, फिर आपका 10,000, फिर लैख। तो अब 4 की आपको पोजीशन बतानी है तो करेक्ट आंसर इज ए। इसमें ऑप्शन है 1000, 10, यूनिट, 100। करेक्ट आंसर इज ए, मीन्स 1000। नंबर 3, पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर 859, 637 इज। आपको इसकी 8 की पोजीशन बतानी है। अब वहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख। तो 8 की जो पोजीशन है वो लैख पे है। इसके करेक्ट ऑप्शन है आपके पास मिलियन, लैख, 10,000 एंड करोड़। तो करेक्ट आंसर इज लैख। नंबर 4, 5 बिलियन इज ग्रेटर देन 5 अरब, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इसके आपके पास आंसर है फॉल्स, ट्रू। 5 बिलियन लेस देन 5 अरब, बिलियन इक्वल टू करोड़। करेक्ट आंसर इज फॉल्स। नंबर 5, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 3 डिजिट नंबर। आंसर है आपका नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता, नॉट ऑलवेज ट्रू। नंबर 5। Number 6, 1 million is equal to how many lakhs? 1 million is equal to how many lakhs? Number 1 million equal to 1 lakh, 1 million equal to 10 lakh. Number C, 1 lakh equal to 10 million. D, none of the above. Correct answer is 1 million equal to 10 lakh. Student, I think so all of you have done exercise number 2, question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Do it question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इसी तरह से आपको करना है जिस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व आपको सिर्फ आपको इसलिए करने को कहा जाता है ताकि आप जो है
इसका करेक्ट आंसर आप फाइंड आउट करें। जैसे ये 16 डिवाइडेड बाई 4, अब 16 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा आपका 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आंसर आ जाएगा। अब इसका अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो आप जब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 को आपने 2 से डिवाइड किया 2, अब 2 को आप 16 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Student, I will start chapter number 12 from geometry section, angles. I will start question number 6 from 172, page number 172. Question number 6, name the angles marked in each of the given figure and classify them according to their possible measurement by inspection। अच्छा, इसमें ये आपको जो नंबर 1 और नंबर 2 पे जो डायग्राम दी हुई है, ये आपको इसके अंदर ये बताना है कि जो एंगल ए बी सी डी है ये आपके कौन से एंगल जो हैं, ये आपका जैसे ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो कौन से एंगल ये बना रहे हैं। तो नंबर 1 फिगर में है ए बी सी, अब बी पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसमें आप लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह से एंगल बी सी डी इक्वल टू एक्यूट एंगल, एंगल सी डी ए equal to right angle and angle DAB equal to right angle। ये आपका नंबर 1 डायग्राम की है। सिमिलरली नंबर नेक्स्ट डायग्राम आपकी है कि ABC आपका ट्राइंगल राइट एंगल बना हुआ है। ये इसमें देख लें कि एंगल ABC, अब B पे आप देखेंगे जब भी जो ABC है तो B पे आप देखिएगा तो ये बन रहा है हमारे पास राइट एंगल, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू राइट एंगल, एंगल बी सी डी बी सी ए इक्वल टू एक्यूट एंगल। लुक दिस डायग्राम स्टूडेंट, एंगल ए बी सी, ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी आपके पास आ गया एक्यूट एंगल, एंगल सी डी ए राइट एंगल एंड एंगल डी ए बी आपके पास आ गया राइट एंगल। सिमिलरली आपके पास एंगल ए बी सी आप बी पे देखें तो ये हो गया आपका राइट एंगल। इसी तरह से आपके पास बी सी ए सी पे आप देखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा एक्यूट एंगल एंड सी ए बी ये भी आपके पास हो जाएगा एक्यूट एंगल। Look at question number 8. Calculate how many degrees there are in। नंबर 1 पे आपके पास आ गया 4 राइट एंगल। अब राइट एंगल आपके पास होता है राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपली वी विल मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 4 राइट एंगल। Look at here student, क्वेश्चन नंबर 8 4 राइट एंगल। इसका आप देखें सॉल्यूशन, 4 इंटू 90, आपने 90 को सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट 360 डिग्री। ये आपका आ गया 4 राइट एंगल। नंबर 2 हाफ राइट एंगल। अब 2 हाफ यानी कि 2 आपके पास राइट एंगल है और हाफ और है, तो आप क्या करेंगे 90 में आप 90 प्लस कर दें या 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आप क्या आ गया 90 प्लस 45 आपके पास कहाँ से आया, आपने हाफ राइट एंगल दिया, यानी कि आप 90 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 45। आप इन्हें 90 में 90 आप प्लस करेंगे और प्लस 45 भी आप इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे तो वी विल गेट 225 डिग्री।
ये आपके पास आ गया 2 हाफ राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2/3 राइट एंगल। 2/3 राइट एंगल, अब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 90 और 90 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 3 को आपने 90 से आपने कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, ऊपर आपने कैंसिल किया तो 3 3 जा 9, 0 का 0। अब ये 30 आया आपके पास, 30 इंटू 2 वी विल गेट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 हाफ राइट एंगल। हाफ राइट एंगल मीन्स आपने 1/2 इंटू 90 डिग्री, 2 से आपने इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2, ऊपर आपने कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आपके पास आ गया 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 हाफ राइट एंगल मीन्स आपको 90 में प्लस करना है 45। हाफ राइट एंगल जो होता है आपके पास होता है 45 डिग्री के इक्वल, तो 90 में जब आप 45 डिग्री प्लस करेंगे तो वी विल गेट 135 डिग्री। स्टार्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूट एंगल। नॉट एन एक्यूट एंगल, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं जो कि इसमें आपसे पूछा है कौन सा जो है इनमें कौन जो डिग्रीज दिए हुए इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर। नंबर 1 पे है 30 डिग्री, नंबर बी पे 78 डिग्री, नंबर सी पे 90 डिग्री एंड डी ऑप्शन 65। Correct answer is 90 degree. Number 2, which of the following is an obtuse angle? अब obtuse angle greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। तो अब आप इसमें देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैंगे 130 डिग्री, 189 डिग्री, 198 डिग्री, 240 डिग्री, 180 डिग्री। करेक्ट आंसर इज 130 डिग्री। नंबर 3, interior angle of a triangle add up to interior angle of triangle add up to 180 degree. Number 4, two right angle form a straight angle. True only when they are adjacent to each other. Number 5, two obtuse angle are always supplementary. False. Correct answer is false. अब इस चैप्टर में आप लोगों ने स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं इसकी एंगल्स की टाइप जो है वो रिपीट कर रही हूँ कि जो टाइप्स आप इसमें डन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज के करवाए हैं ये आपको अपनी कॉपीज में मंथ ऑफ अगस्त में लिखना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपके पास सबसे पहले मैंने आपको बताया था राइट एंगल है। राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। द आर्म ऑफ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपके पास इसकी डायग्राम भी मौजूद है। तो ये आपका है राइट एंगल जो बिल्कुल एल शेप में होता है। एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से लेस होता है। स्ट्रेट एंगल आपका होता है, स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल form a straight line. The arms of straight angle extend in opposite direction. आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको बढ़ा सकते हैं और ये 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आपका रेफ्लेक्स एंगल है। रेफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रेफ्लेक्स एंगल जितने भी 180 डिग्री से बड़े होंगे, मोर देन होंगे और 360 से छोटे होंगे वो रेफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। इसी तरह से आपका सिमिलरली कंप्लीट एंगल मेजर 360 डिग्री।
360 डिग्री का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है हमारे पास। ये आपका एंगल चैप्टर का कुछ रिव्यू दिया गया है और ये क्वेश्चंस आपके हैं और इनकी डेफिनेशन छोटी हैं और ये इसी तरह के आपको अगर क्लासीफाई करने के लिए कुछ डिग्रीज दे दी जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो मैंने आपको कराया है कि क्लासीफाई करना है आपको कि कौन सा एंगल है। 1 डिग्री भी दिया है, 360 डिग्री भी दिया है, 2 डिग्री भी। तो सिर्फ आपको उसके आगे नेम लिखने हैं कि ये जो है किससे रिलेटेड है। जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के आगे आपने लिख दिया राइट एंगल, या सपोज दैट आपके पास 60 डिग्री है तो 60 डिग्री एक्यूट एंगल होगा, बिकॉज एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। जितने भी 90 डिग्री से कम है आप उनको एक्यूट एंगल में लिख देंगे। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को इसमें मंथ ऑफ अगस्त में वो ज्योमेट्री का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। आपका अर्थमेटिक का नेचुरल एंड होल नंबर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा ये आपका 8B एक्सरसाइज अलजेब्रा का सेक्शन है जो कि आपका ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, एट द फॉलोइंग। ये वाला ये जो क्वेश्चन थे जिसमें आपको कॉमा हटा के आपको प्लस करना था, ये आपका अलजेब्रा का सेक्शन था। जैसे सपोज दैट 2x कॉमा माइनस 3x कॉमा माइनस 5x, तो आपने कॉमा हटा के पहले आपने, अगर माइनस का साइन है तो माइनस डाल दिया, और अगर कॉमे के बाद कोई साइन नहीं है तो आपने प्लस का साइन डाल के उसको ऐड कर लिया। इसी तरह से आपने इसका जब आपने ऐड किया आपने प्लस प्लस वाले क्वेश्चन कर लिए। और अब आपका जब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आया है, जैसे इसमें आपके पास सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी था हमारे पास कि सब्ट्रैक्ट नंबर 1 पे था 5a फ्रॉम 8a, तो आपने इसको किस तरह से लिखा था, फ्रॉम के बाद 8a है तो आपने 8a माइनस 5a। अब जब आपने 8a में से आपने 5a माइनस कर दिया तो वी विल गेट 3a, आंसर आ गया। इसी तरह से आपने नंबर 2 इसका क्वेश्चन था 7x फ्रॉम 4x। अब आपने जो नंबर आपका फ्रॉम के बाद लिखा होता है वो आप पहले लिख देते हैं, 4x माइनस 7x, तो ये आ गया आपके पास माइनस 3x। इसी तरह से आपने सारे इसके क्वेश्चन जो हैं डन किए। इसके बाद आपके पास आ गया इसी का सब्ट्रैक्ट का है, जिसमें से आपको 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ज्योमेट्री के बाद स्टूडेंट हमने 8B चैप्टर जो स्टार्ट किया था इसके लिए मंथ ऑफ अगस्त के लिए, उसके अंदर जब आप ऐड करते हैं तो इन अलजेब्रा लाइक टर्म कैन बी एडेड टुगेदर टू गिव अ सिंगल टर्म, बट अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड। इसमें जब आपने एडिशन की थी तो आपने ये देखा था कि जो अनलाइक टर्म है मीन्स के जैसे 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x एंड 4x प्लस x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x, ये सारी x की टर्म थी तो x की टर्म में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से आप अगर यहाँ पे y होता, जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन भी हैगा, अगर हमारे पास y की टर्म होंगी, ये लाइक टर्म है एकदम, यानी कि ये आपके पास आ गया 4y प्लस y 3y इक्वल टू, आपने इनको सबको नंबर्स को प्लस कर दिया, उसके बाद आपने y इसमें ऐड कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास y की जगह x होता तो आप सिर्फ 4y और y प्लस करते और x आप ऐसे ही लिख देते, क्योंकि जो सेम वेरिएबल होते हैं वो हम आपस में ऐड कर देते हैं। लुक एट हियर क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एट द फॉलोइंग, आपको मैंने वर्टिकल मैंने करवाया है, आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है आपको वर्टिकल भी कराया है और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको प्लस कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो सी वाले वेरिएबल हैं ये हमने एक साथ प्लस किया है, यहाँ पे हमने बी वाले बी के साथ प्लस किए हैं और ए वाले हमने ए के साथ प्लस किए। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया है कि सी वाले हमने अलग कर दिए हैं और बी के अलग कर दिए और ए के हमने सेपरेटली हमने इसमें प्लस किया है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, आपके पास है सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। ये सब्ट्रैक्ट ये आपकी एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ
आपको समझना है कि 3a³ माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 फ्रॉम 0। अब आप देखें इसको हमने जीरो में से आपको माइनस करना है, तो 0 आपने लिखा, माइनस के बाद आपने फर्स्ट जो आपकी वैल्यूज लिखी हुई है उनको आपने ब्रैकेट में कर दिया। अगर ये सिंगल वैल्यू होती तो आप ब्रैकेट यूज नहीं करते, क्योंकि जब आप माइनस का साइन डालते हैं तो आप ऐसे नंबरों को आप ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ता है, वरना आपको ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं आप। लुक एट हियर, अब 0 में से आपने 0 माइनस 3a³ है माइनस 2a स्क्वायर है प्लस a माइनस 1 है। अब आप यहाँ पे देखें माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, जहाँ जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइनें उनकी चेंज हो जाती हैं। जब ये साइन चेंज हो गई तो 0 तो अपनी जगह पे रहा, ये आपने माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a³ माइनस a प्लस 1, ये आपका आ गया आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। तो आपने मंथ ऑफ अगस्त में आपके स्टूडेंट 3 चैप्टर आपके मंथ ऑफ अगस्त में थे। एक तो आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल एंड होल नंबर था, 8B एक्सरसाइज थी, और आपका एक एंगल्स का था। तो उसके कुछ जो है मैंने आप लोगों को इसके अंदर वर्क बता दिया है, और ये सब वर्क जो है मैं आपको सॉल्व जो है सॉल्यूशन इसका सेंड कर दूंगी। अब ये आई विल वाइंड अप माई लेसन। थैंक यू।